energetic hi to all my amazing students. Today we will start chapter 10 of circles. This is the 10th standard mathematics lecture. In previously we have already seen what are the chapters. We have summarized everything that we have to study in overall 10th standard. Today we will start with the circles. Okay. Why circles? So there are many chapters in your 10th standard textbook, but we are starting with circles because it is something that is previously we have done, and it's not a very difficult chapter. You just have to understand some basic concepts, basic theorems, and you just have to understand how to prove them. And that's a very simple chapter if you study. Okay, circles से start करें. First of all, आप बताओ circle को कैसे define करोगे? How you define the circle? What are the two most important things you require when you define a circle? अच्छा सर्कल क्या होता है सबको पता है ना, सब गोल गोल इधर घूमने सबको याद है. सॉरी दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल, मेरा सेंटर कहीं और ही चला था, तो मैं सेंटर शिफ्ट कर देते हैं. सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ आई एम ड्राइंग अ सर्कल, हाउ विल यू डिफाइन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट द सेंटर? दिस इज नोन एज फिक्स्ड पॉइंट, है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट. तो जब तुम्हें सर्कल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू कंसीडर अ फिक्स्ड पॉइंट एंड देन यू हैव टू टेक अ फिक्स्ड out constant distance. So this is a constant distance. तो चलो अब मेरे साथ जल्दी से सर्कल की डेफिनेशन रिपीट करो, जल्दी जल्दी जल्दी. इन दोनों से क्या डेफिनेशन बनाओगे आप सर्कल की? So when you move at from a fixed point at a constant distance in all the direction, you get a circle, है ना? From a fixed point, take a constant distance, and with the distance, with that radius, just move in all the directions, and that's how you will trace out a circle. So this is a circle. Generally how you define the circle? Circle को आप denote कैसे करते हो? Like आप denote करोगे इसको सर्कल को, सर्कल ब्रैकेट में you will write, first you will write what is the center point of circle. Suppose मैंने इसका center point O बोला, this is center of the circle, so you write O, and then you will write a constant distance. Suppose it is 3 centimeter if I am taking, so O 3. This is how, right? This is how it is the symbolic representation of circle. Okay? क्या कौन से दो इंपॉर्टेंट चीजें हम डिनोट कर रहे हैं? C is for circle. First coordinate is for the center point. Second coordinate is for the radius. Means हम ले क्या रहे हैं? We are taking a fixed point and the constant distance. Circle, fixed point, constant distance. Circle, fixed point and constant distance. बस इसी डेफिनेशन में, हाँ इतनी सी डेफिनेशन है. चलो अभी आगे चलते हैं. डेफिनेशन क्लियर है. लेट्स गो सम टू अदर कॉन्सेप्ट्स. अच्छा एक बेसिक चीज हम रिवाइज करा देती हूँ. जो हम सर्कल में बचपन से पढ़ते हैं इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, राइट? दिस आउटर पार्ट इज द एक्सटर्नल, or you can say outer part of the circle, and this inner side is inner part of the circle, right? This is how you denote. So circle divides a plane into two parts, outer and inner part of the plane. Divide हो जाता है. सर्कल क्या करता है? प्लेन को डिवाइड कर देता है. ओके, सो हम चाहते हैं अब उस कॉन्सेप्ट पे जो हम इस चैप्टर में बेसिकली सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं. सो दिस चैप्टर विल बी ऑलमोस्ट सर्कुलेटिंग अराउंड, सर्कल का चैप्टर है, सर्कुलेशन तो होगा, सर्कुलेटिंग अराउंड द वर्ड टेंजेंट. अब टेंजेंट क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं. चलो पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. अगर आपको मैंने बोला कि आपको एक प्लेन में सर्कल और एक लाइन ड्रॉ करनी है, पता है ना लाइन एंड सेगमेंट हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, नहीं पढ़ा तो अभी भी 9th का लेक्चर आया है, एक बार ट्राई करके देख लो लाइन एंड सेगमेंट के बारे में. ओके, आपको क्या करने के लिए बोला मैंने? एक सर्कल लो. दिस इज लाइक अ सर्कल, इट इज अ सर्कल, है ना, एंड दिस इज अ लाइन. The question is, in how many ways you can make a circle and a line on a single plane? कितने वेज में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो? एक वे तो यही होगी, है ना. चलो दूसरा वे देखते हैं. दूसरे वे मैंने किया, ये मैंने सर्कल बनाया, है ना, और फिर मैंने ये लाइन ऐसे यहाँ से इसके पास से पास कर. एक वे ये हो सकता है सर्कल और लाइन को एक प्लेन में बनाने का, और एक वे मैंने क्या किया, ये मैंने एक सर्कल बनाया, सेंटर यहाँ पे आएगा और मैंने ये लाइन यहाँ पे. तो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ. जिन्होंने चैप्टर को थोड़ा सा पीछे फोल्ड करके देखा होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक.
चलो ड्राइंग थोड़ी सी मेरी एडजस्ट कर लेना, इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमने 3 वे से बना दिया। क्या कर रहे थे हम सर्कल को और लाइन को एक ही प्लेन में बना रहे थे। हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर टू मेक इट लाइक दिस? तो क्या किया, ये तो लाइन यहाँ पे टच ही नहीं हो रही है, तो आप इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्शन तो पता है ना, जब दो लाइंस मीट होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, है ना, या फिर दो फिगर्स मीट होते हैं, तो ये क्या है, इट इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसको क्या बोलते हैं, तो जब लाइन सर्कल के मिडिल से पास होती है, राइट, जब सर्कल से मिडिल से पास होगी तो हम इस लाइन को बोल देते हैं सेकंड ऑफ द सर्कल। क्यों सेकंड? सेकंड का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड? So basically, when you are drawing this line, you are dividing the circle into 2 sections. This is the section 1 and this is the section 2. No problem, आप इसको 1 इसको 2 दे सकते हो, that is no problem. So since this line is dividing the circle into 2 sections, that's why we call it as a second of a line. Clear? अब इस पर आ जाते हैं, ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को सिर्फ यहीं पर टच कर रही है, तो इस तरह की लाइंस को बोलते हैं हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल। This is the tangent of the circle. Okay, this is the tangent. And यही हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, tangent of the circle. ठीक है, क्या करना है हमें, सर्कल और लाइन को साथ में स्टडी करना है, वो एक सर्कल लो एक लाइन लो, इमेजिन करो अपने आप, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव होगा ना कुछ, क्या क्या टेंजेंट कर सकता है, किस तरह के एंगल्स बना सकता है, एवरीथिंग। अब आप बोलोगे मैम ये क्या करेंगे हम सर्कल और लाइन को पढ़ पढ़ के, क्या मिलेगा हमें, अब इसका एप्लीकेशन धीरे धीरे समझ में आएगा। Your intention is right now you not get to understand how to apply it, but gradually when you go in the higher positions, higher mathematics part, you will get to understand कि किस तरह से हर फील्ड में हम ये यूज करते हैं, how this things get help। पुली देखा है, पुली नॉट पुली ना, जिसे ऐसे यू नो ऐसा होता है एक सेंटर पार्ट वाला, जिसको हम ऐसे एक साइड पे कुछ वेट रखते हैं, किसी भी कन्वे ऑफ बेल्ट में भी आपने देखा होगा, है ना, तो ये क्या कर पाता है, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। हम आप बोल रहे हो ना कि कैसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है इसकी, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी जगह पे यूज होगा। देखा है पुली, यहाँ पे कुछ वेट हम अटका देते हैं ना, फिर वो ऐसे मूव करता है, राइट। सो जनरली पानी भरने के लिए, ऐसे चीजों के लिए इट इज यूज, विलेजेस में कुएं से पानी भरने के लिए यूज होता है, राइट। एक साइड पे खाली हम कुछ भी अपना वेसल रख देते हैं, बांध देते हैं अपनी बाल्टी को, और दूसरी साइड से भी pull it. So what will happen? That water, the vessel will go down in the well. पानी उसमें भर जाएगा, हम लूजन करेंगे ग्रिप को, फिर टाइट करके जब खींचेंगे तो we'll get the water. अब हर कोई तो कुएं में नहीं कूद सकता ना, राइट। सो दिस इज द वे, है ना, इसमें पुली यूज हो रहा है। तो क्या है यहाँ पे, ये अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ले लें कि ये रोप का क्या हो रहा है, इट इज अ टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों की वर्किंग में हमारा ये टेंजेंट एंड सर्कल वाले कॉन्सेप्ट काफी काम आते हैं। ठीक, चलो धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट कर, साथ साथ में ये भी देखते जाएंगे कहाँ कहाँ काम आते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके गुड, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट। नोट डाउन फटाफट से, व्हाट इज द टेंजेंट, टेंजेंट की डेफिनेशन लिख लो इसमें जल्दी से। क्या होगा टेंजेंट, क्या देखा था अभी हमने, देयर वाज वन सर्कल और सर्कल से एक लाइन पास हो रही थी, है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल अ टेंजेंट। तो किसको क्या बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट इज a line that intersects the circle at one point। तो जो सर्कल को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। पर आप बोलोगे क्यों, ये तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लग रहा है 2 पॉइंट, नहीं, एक्चुअली इट इज ओनली एट वन पॉइंट इट इज टचिंग। अब एक बात बताओ, आप इस पॉइंट पे और कोई टेंजेंट बना सकते हो, इज इट पॉसिबल? टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं, तो इसको मूव करना पड़ेगा, तो क्या होगा, हम इसको अगर थोड़ा सा भी मूव करेंगे, अगर इस पॉइंट पे बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, विल ट्राई अगेन, ऐसा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी सेंटर टच सर्कल पे टच होने वाले पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, व्हेन वी आर ड्राइंग अदर, व्हेन वी आर ट्राइंग टू ड्राइंग द अदर टेंजेंट्स। इसी पॉइंट से अगर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अगेन 2 पॉइंट मिल जाएंगे हमें कांटेक्ट के। द पॉइंट इज टेंजेंट
at a given point is unique. अगर आप किसी एक पॉइंट की टेंजेंट की बात करें तो यूनिक है, आप उस पॉइंट पे एक और टेंजेंट नहीं बना सकते. ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट. आज कोई और दूसरा अगर बनाओगे तो उसका कोइंसिडेंट ही होगा. कोइंसिडेंट का मतलब ये मैंने एक लाइन बनाई है ना, और फिर मैंने इसके ऊपर एक और लाइन बना दी, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं. तो कोइंसिडेंट का मतलब नहीं, दैट इज द सेम लाइन एक्चुअली, बट यू कैन नॉट ड्रॉ एनी अदर टेंजेंट ऑन द सेम पॉइंट. दिस इज द थिंग, राइट? Okay, let's begin with the theorem. If you want to look into the textbook, it is your 10.1, theorem 10.1. So what is the theorem? It is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Means what? The tangent, okay, at any point of the circle, the tangent at any point of the circle is perpendicular. What is perpendicular meaning? Means two lines are making 90 degrees. Perpendicular को आप ऐसे define कर सकते हो in symbolic form. Perpendicular to what? Perpendicular to radius. From where? Reference from to the point of contact. So if अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो रेडियस के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा. इमेजिन करने की कोशिश करें, दिमाग में कैसे इमेजिन करोगे? तो पेन में चलाओ, अपनी नोटबुक यूज करो. आई होप सबके पास नोटबुक एंड पेन लेके बैठे हुए हो. जो मैथ्स बिना पेंसिल और पेन के और नोटबुक कर रहा है, आई एम सॉरी टू से बट दैट इज अ वेरी बिग स्टुपिडिटी. Then I don't expect any of my students doing the same thing. ठीक, चलो क्या प्रूव करना है हमें? This is the circle. हमें बताना है कि अगर मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बना दिया, this is my tangent. What is saying the tangent at any point? ये मेरा पॉइंट हो गया. पहले हमने इसको ले लिया सेंटर O, ये मैंने ले लिया पॉइंट P, and what is saying it will be perpendicular to the radius. Radius क्या है? ये रहा हमारा रेडियस. रेडियस क्या होगा? फिक्स पॉइंट से लेके एक कांस्टेंट डिस्टेंस तक हमें चल के आना है. चलो 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 आगे हम कांस्टेंट डिस्टेंस चल के आ गए, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई. व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये जो रेडियस है ये इसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? ये सर्कल है, ये वहां पे टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना हुआ है, मैंने बोला ना हर पॉइंट पे टेंजेंट यूनिक होता है. तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना हुआ है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. किसका कांटेक्ट? अरे आपको कांटेक्ट नंबर नहीं मांग रहे हो. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है सर्कल और लाइन कहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे टच हो रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. गॉट इट? चलो, एनीवन कैन शो मी हाउ टू प्रूव इट? थिंक कुछ राइम्स का याद आ रहा है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए? सी प्रूफ, थ्योरम्स के प्रूफ सिंपल होते हैं. अगर हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ हमें करना क्या है, ठीक है? बेसिक आपको पता होना चाहिए. तो क्या लिखोगे सबसे पहले? प्रूफ का एक सिंपल थ्योरम हमेशा याद रखना. थ्योरम को प्रूव करने का किसी भी प्रूफ दैट है यू हैव टू फर्स्ट राइट द गिवन डेटा. व्हाट इज द गिवन डेटा? देन यू हैव टू सेकंडली राइट व्हाट यू हैव टू प्रूव. आपको प्रूव क्या करना है, एंड देन आफ्टर ड्राइंग द फिगर यू हैव टू स्टार्ट द प्रूफ. दिस इज यूनिवर्सल थिंग. आपको हर कोई चीजें बताएगा, मैं भी बता रही हूँ. द सिमिलर थिंग यू हैव टू ऑलवेज फॉलो इफ यू वांट टू गेट द मार्क्स प्रॉपर्ली. डेफिनेटली फॉलो दिस प्रोसीजर. फर्स्ट राइट द गिवन. गिवन का मतलब होता है डेटा. आप ये डेटा भी लिख सकते हो. क्या क्या आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, उसके पास एक टेंजेंट पास हो रहा है, ये दिया हुआ है. प्रूव क्या करना है आपको कि ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है. चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. पहले इसको थोड़ा नेमिंग करते हैं. चलो मैंने लिख दिया दिस इज द पॉइंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस डेफिनेशन एंड थ्योरम, देन वी स्टार्ट द प्रूफ. हम इस लाइन को नाम देते हैं. हमारी लाइन हो गई सपोज एक्स वाई. क्या करोगे अभी? कैसे प्रूफ करोगे? ना पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कुछ नहीं चलेगा. व्हाट यू हैव टू प्रूव? सी, जब हम एक पाइथागोरस थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी सेइंग दिस इज 90 डिग्री, व्हाट डज इट मीन?
कहीं पे भी अगर परपेंडिकुलर आता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोस्टली ये चीजें क्या रख लो, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको अगर बोला जा रहा है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब सिंबॉलिकली मतलब ये होता है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। जिन दो प्लेसेस के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब है आपको वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। मींस अगर ये बोल रहा है कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मींस व्हाट, दिस ओ से लेकर पी तक इस लाइन तक आने का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो प्रूव कर दो कि और कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो वो इससे बड़ा होगा। बस इतना ही प्रूव करना है। अल्टीमेटली वी विल कम टू नो कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? ओके, अज्यूम करते हैं हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया से एम, ओके, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ओ से। थोड़ी देरी हो गई हमारी लाइन, ओके, ये मैंने बोला ये हमारा पॉइंट है। अब आप ये को देखना है, इज इट पॉसिबल कि ये आपका ओ एम और ओ पी को आपको कंपेयर करना है, ओ एम और ओ पी, विच वन विल बी बिगर? ओ से इस लाइन तक आने का ये डिस्टेंस छोटा होगा या ये डिस्टेंस छोटा होगा? सिंपल सी बात है, एम क्या है, सर्कल के बाहर लाइन कर रहा है, सर्कल के अंदर लाइन नहीं कर रहा है। मींस ये देखो यहां से लेके यहां तक, इसको भी हम नाम दे देते हैं, दिस इज से क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू। सी ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा माइल चल के आना पड़ रहा है। क्यू एम इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मींस क्या हो गया, ओ एम इज ग्रेटर देन ओ पी। कोई और लाइन लेके देख लेते हैं, इस साइड पे लेके लेते हैं, मैंने एम दे दिया, तब क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसको भी मैं नाम देती हूँ आर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ आर इज इक्वल टू ओपी, है ना, दिस इज इक्वल, दिस इक्वल, रेडियस है ना, सेंटर फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस चल के आ रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट हमारे सेम डिस्टेंस पे है, बट हमें यहाँ पे चल रहा पड़ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा, दिस इज द एक्स्ट्रा माइल, दिस इज द एक्स्ट्रा माइल। तो अभी तक तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। तो अगेन अगर हम ओ एन को कंपेयर करेंगे, ओ एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओ पी। So like this, if you take any of the point, आप यहाँ कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट लो, it will always be greater than OP. Why? Because ये सर्कल के बाहर है, तो कोई भी O से आने वाला लाइन इस सर्कल से रेडियस को क्रॉस करके ही उस लाइन तक जाएगा। If you take even यहाँ पे, और अब यहाँ पे भी कोई पॉइंट लोगे, सपोज मैंने ले लिया इसमें T, तो अगर यहाँ से भी आप एक पॉइंट लेने वाले हो, so you will get this extra distance to cover. So this will make OT greater than OP. ये सब समझ क्या समझ में आ रहा है? OP is always the shortest distance to reach from center of the circle O to this line XY. Got it? And hence OP is the shortest distance. And hence क्या मिल गया हमें? OP is perpendicular to line XY. Done? Clear? Simple ना? कुछ बड़ा सा प्रूफ नहीं है इसका, बस हमें यही अपने मैंने बताया वही आपको समझ के लिखना है। बाकी आपके थियोरेटिकल चीजें हैं, आपके बहुत सारे फॉर्मल एक्सियम्स, डेफिनेशन और सॉल्यूशन प्रूफ आपको अपने रेफरेंस बुक्स में, अपने टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। बट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ओके, पढ़ के कभी कभी समझ में नहीं आता है। वेरी गुड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर हियर टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स। क्लियर? पता चल गया क्यों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? अब ये थ्योरम हो गया, आपका बाय चांस प्रूफ आएगा, वैसे मोस्टली नहीं आता है, बट अगर आएगा तो दैट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड assume two lines from this side and this side, you show them that OP is the shortest distance. इस लाइन पे और कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो OP से बड़ा होगा, you have to prove that. जब आप OP को shortest distance प्रूव कर दोगे तो आप OP को इसके perpendicular प्रूव कर दोगे, because perpendicular distance is actually equivalent to the shortest distance. Clear? Very good. चलो जल्दी से अपने ओन वर्ड्स में इसको प्रूफ लिखो। हमने हेलो दोस्तों, मैं हूं मई, कंसिडर मी एज अ लर्नर who wants to keep growing with you, all of you guys. Please do support us and keep loving us. Thank you so much.